Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Today we will start the lesson number 11, human body and organ system. Okay, human body and organ system. So now yes, in the 7th standard, in 6th standard, you have learned that the our body made up of cells and cells, then collection of cells which perform the same function called tissues, and tissues form the organs, and organs collectively form the system, and the systems makes the body. But in the unicellular organism there is only one single cell, and all the functions are performed in the that single cell only. But yes, here in this lesson we have to study the human body, means we have to learn about our body. अपने ही बॉडी के बारे में स्टडी करना है, नॉट द अदर लिविंग थिंग्स, दूसरे लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं. Okay, now yes, can you recall these questions are related from the lower standard? From what organs and organ system are made up of? From what the organs and organ systems are made up of? The organs are made up of tissues, and organ systems are made up of the organs. Which organ systems are present in the human bodies? अब second question क्या है? Which organ systems are present in the human body? Means human body के अंदर कौन कौन से organ system present है, ये पूछ रहा है. So yes, which organ systems are present in the human body? Okay, let's count on the finger. First one, respiratory system. Second, transport system, means blood circulatory system. Third, nutrition. Fourth, reproduction. Fifth, muscular system and skeleton. Fifth, nervous system. And yes, there are the still yes more systems are present in the our body. Okay, so yes, you have studied about the some organ system in the previous standards. Now see, the different organ in our body are working in groups so as to smoothly carry out the various functions. Okay, अब क्या बोला है? Yes, various organs और yes organ in our body are working in group. बहुत सारे ऑर्गन क्या करते हैं, एक साथ में हमारे बॉडी में काम करते हैं. सो एज टू स्मूथली कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, सो दैट ताकि क्या हो सके, सभी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो सके, स्मूथली रन हो सके विदाउट डिस्टर्बेंस, वो क्या है, चल सके. दिस लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप्स, एंड दिस लाइफ प्रोसेस is not a single step actions. Yes, it contain yes a lot of steps. The life process takes place in various steps. Specific organs carry out the specific steps. Now specific organs, for example, small intestine. Small intestine digests the yes food completely and convert into the glucose into the yes glucose, carbohydrate convert into the glucose, yes amino acids are obtained from the proteins, and the fatty acids are obtained from the lipids. Then absorption of the yes mineral and salts again done by the large intestine, and yes the stomach digests the partially the food that are taken inside the stomach. So here yes all the organs perform the specific functions. So here yes, for example, yes that liver yes secrete the bile acid. Okay, pancreas secrete the pancreatic acid, पैनक्रियाटिक जूसेस वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, एक्सेट्रा. वेरियस ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटन, मस्कुलर एक्सेट्रा आर फंक्शनिंग इन अवर बॉडीज. अब देखो कौन कौन से सिस्टम हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम,
respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system, reproductive system, skeletal system, muscular system. Okay, all these are the system which are together working, and then only yes we are able to perform the yes work properly. If any one of the system get disturbed, the whole system will get disturbed. अगर इसमें से एक भी सिस्टम का फंक्शंस अफेक्टेड होता है, एक भी ये क्या है, एक सिंगल सिंगल ऑर्गन का सिस्टम अगर अफेक्टेड होता है, उसमें रुकावट आती है, तो ऑल द सिस्टम विल गेट अफेक्टेड। पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। कैन यू रिकॉल what different organ perform, which are different organ perform the functions of the breathing in the body of animals? अब पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन में कि कौन से अलग अलग ऑर्गन एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करते हैं। तो क्या क्या होगा उसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन काम करता है, अवर नोज, ओके, नोज। फिर क्या है ये, लंग्स, नोज और लंग्स ये क्या करते हैं, ये फंक्शंस करते हैं। एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। Energy is essential to operate all the life process in human body. Now yes, those functions which are performed by the various system, they need the energy, and energy is must for yes operating all the system. In absence of energy, the system will stop working. Energy production occurs within the cell. Cell need the supply of the soluble nutrient and oxygen for the purpose. अब जितने भी एक्शंस, जितने भी फंक्शंस, फॉर एग्जांपल बीटिंग ऑफ द हार्ट, ओके, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द क्या है ये हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम ऑफ द yes diaphragm which is located below the lungs. All this required the energy. ये सभी के लिए एनर्जी जरूरी है, फॉर स्पीकिंग, फॉर वॉकिंग, फॉर टॉकिंग, फॉर राइटिंग, फॉर ईच एंड एवरी वर्क एनर्जी इज मस्ट. नाउ दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. जो हम खाना खाते हैं उसी से क्या है ये एनर्जी उस पूरे सिस्टम को मिलती है। तो फॉर दैट, उसके लिए क्या है, यस दैट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू बी सप्लाइड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द यस बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग्स के ईच एंड एवरी पार्ट में वो क्या पहुंचना चाहिए, न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट क्या है, यस कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या है ऑक्सीजन, ये पहुंचना चाहिए। और जब जैसे कि ये क्या है, ये व्हीकल में ये टैंक होती है, टैंक में डीजल या पेट्रोल डाला जाता है, और उसके बाद में उस टैंक से वो क्या है पाइप के थ्रू इंजन में जाता है। तो इंजन वो जो प्लेस है जहाँ पे उसकी बर्निंग होती है, और बर्निंग होने के बाद में इंजन में प्रेजेंट जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके अंदर मूवमेंट्स होता है, और वो अटैच रहते हैं व्हील से। और व्हील जब इंजन के अंदर मूवमेंट होता है तो व्हील को रोटेट करता है, तो व्हील को रोटेट करता है तो वो क्या है ये आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, तो क्या है ये सेम, अगर हम व्हीकल को कंपेयर करें तो वैसा ही जैसा वो टैंक है वैसा ही हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें हम फूड डालते हैं, खाना डालते हैं। खाना डालने के बाद क्या है ये एज इट इज उससे एनर्जी नहीं मिलती है, वो कहाँ पे जाता है, ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, ईच एंड एवरी सेल्स, अपने बॉडी के हर एक सेल्स में जाता है, और हर सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसा नहीं है कि क्या है ये स्टमक सिर्फ डाइजेशन करके उसको क्या करता है, ये उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, और वेस्ट को क्या करता है ये एक्सक्रीट करने के लिए एनएस के थ्रू वो उसको बाहर कर देता है। बट जो क्या है ये जो वहाँ से न्यूट्रिएंट मिला हम लोगों को वो पूरे ईच एंड एवरी सेल में सर्कुलेट होता है, जैसे कि यस डीजल पेट्रोल जो उस टैंक से सर्कुलेट होता है किसके अंदर, इंजन के अंदर, और इंजन में बर्निंग होती। तो सेम वैसा ही हम फूड को फीड करते किसके अंदर, स्टमक के अंदर। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, उसका कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में होता है, और उसके बाद वो
ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल्स में पहुंचता है, फिर वहां एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। दैट वी हैव सीन इन द अर्लियर लेसन दैट माइटोकॉन्ड्रिया, ईच एंड एवरी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, ये एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और फिर वो ऑर्गेन जिस सेल से बना है वो पूरे के पूरे सेल्स में वो एनर्जी मिलती है और पूरे के पूरे सेल्स क्या है, फंक्शंस करते हैं। The cells need the supply of soluble nutrients and oxygen for the purpose। अब ईच एंड एवरी सेल ही एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, सेल के अंदर ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे कि व्हीकल को चलने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए, वैसा ही उस सेल को फंक्शन करने के लिए उसको वो किसकी ज़रूरत होती है, फूड एंड ऑक्सीजन की। This supply takes place with the help of the respiratory and circulatory system। अब ये जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट की, जो हर एक सेल्स में पहुंचना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी जगह नहीं है कि बॉडी में कि एक ही जगह पे एनर्जी रिलीज होगी और क्या है वो एनर्जी हर जगह फॉरवर्ड होगी, ऐसा नहीं है। क्या होगा, एनर्जी हर एक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट ईच एंड एवरी सेल के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि क्या है एक ही जगह एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और सभी जगह सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। फूड का डाइजेशन एक जगह हो रहा है और वो न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, एनर्जी सर्कुलेट नहीं हो रही है। कीप इन माइंड, ये चीज़ ध्यान में रखो। क्या सर्कुलेट हो रहा है, न्यूट्रिएंट। और वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कहाँ पहुँच रहा है, हर एक ऑर्गन के हर एक सेल्स में, और हर एक सेल्स क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी एक जगह बन रही है और हर जगह उसको सर्कुलेशन हो रहा है। ओके, तो कीप इन माइंड दिस सप्लाई ऑफ द energy supply of the nutrient takes place through the respiratory as well as the circulatory system। respiration carried out through the following three steps। अब respiration हम लोगों को क्या है, ये इजीली क्या लगता है कि respiration क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना, मीन्स इनहेलिंग द एयर इनसाइड एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। दिस इज is called physical respiration। This is not the complete respiration। complete respiration is, yes, it is a complex process। ये complex process होता है and the respiration is the life process। because of that only the energy is obtained in the cells। इसी की वजह से एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है। नाउ यस लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या है, ये टाइप्स क्या क्या है, नहीं सॉरी नॉट टाइप्स, ओके, टाइप्स आर टू। one is called as the aerobic respiration and second is called as the anaerobic respiration। means yes, there are certain organism that they can perform the respiration in absence of the oxygen also। and the yes, huge animals generally require the high energy, and yes, animal always required the more energy as compared to the plants, because plants are not showing the yes movement but animals are showing the movements, means they are going from one place to another place, that's why animal required the more energy as compared to the plants। now yes, these are the steps of the respiration, steps है, okay, not type। type में क्या आएगा, two types, aerobic respiration and anaerobic respiration। aerobic respiration means the respiration which takes place in presence of the huge amount of oxygen, and the respiration which carried out in absence of oxygen called anaerobic respiration। so these two are the type of the respiration। so there are certain microorganisms which perform the anaerobic respiration। now yes, steps in the respiration steps। now yes, there are the three steps। first one, external respiration। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो yes, it involve the inspiration and expiration। inspiration means inhalation and expiration means exhalation। okay, now yes, let's see the external respiration। now this involve the taking of oxygen through the nose and yes, carrying out to the lungs, and yes, the collected carbon dioxide carrying out from lungs to the nose, and yes, releasing from the nose।
तो दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हियर देयर इज अ नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होता नहीं है, ओनली क्या होता है, कैरिंग होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ इट कंटेन द टू प्रोसेस, वन इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन, इनहेलेशन मीन्स क्या है, टेक यस टेकिंग ब्रीथ इन, सांस को अंदर लेना। और दूसरा स्टेप क्या है उसका, एक्सपिरेशन मीन क्या है, रिलीजिंग द ब्रीथ, ब्रीथ को क्या करना, छोड़ना, सांस को छोड़ना। फर्स्ट स्टेप, air is taken in through nose and sent towards the lungs through the trachea। अब क्या होता है इसके अंदर, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना। तो एयर इज टेकन, हवा को लिया जाता है थ्रू द नोज एंड सेंड टुवर्ड्स द लंग, और सेंड की और लंग की तरफ उसको भेज दिया जाता है थ्रू द ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप, इसको विंड पाइप बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, एक्सपिरेशन और एक्सेलेशन। ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू द ब्लड। अब यहाँ पे एक्सपिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू द ब्लड, ब्लड कैरीज द CO2 फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लंग्स एंड दिस एयर इज गिवन आउट बाय द एक्सेलेशन। तो जो ये क्या है, एक्सेलेशन, एक्सेलेशन प्रोसेस में जो ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास आया रहता है, उस लंग को नोज के थ्रू क्या है, ये बाहर करना ही क्या है, एक्सपिरेशन है। बोथ ऑफ दीज प्रोसेस ऑकरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये दोनों प्रोसेस यस लंग की हेल्प से ही होता है। जब लंग क्या करता है, ये डायफ्रेम और लंग्स ये उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस। नाउ सेकेंड वन, इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ यस वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट दैट दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होता है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड, exchange of the gases between cells and tissue fluid is called as internal respiration. Oxygen moves from blood into the tissue fluid and carbon dioxide move from the tissue fluid into the blood। तो यहाँ पे क्या हो रही है इस इंटरनल रेस्पिरेशन में, जो सेल्स है, वी नो दैट ये सेल हैव द सेल मेम्ब्रेन, सेल के अराउंड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। एंड जो ब्लड होते हैं, ब्लड कैपिलरीज सेल से अटैच है। तो क्या होगा यहाँ पे, yes blood capillary releases the oxygen into the cell, and then yes that capillaries also take the CO2 from the carbon dioxide। so this is the exchange, yes giving to the oxygen to the cell and taking the CO2, okay, is नथिंग बट द इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में, सेल और टिश्यूज के बीच में जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ ये थर्ड वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस स्टेप, इन दिस स्टेप ओनली द एनर्जी इज रिलीज यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट। इसी स्टेप में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करके। सेलुलर रेस्पिरेशन, dissolved nutrients like glucose, dissolved nutrient like glucose are slowly burnt means oxidized with the help of the oxygen and energy is released in the form of ATP। और वहाँ पे जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। और ATP क्या है, केमिकल है, इट्स फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये कहाँ पे होती है, सेल्स के अंदर। वेस्ट मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब ये जब क्या है, ये ग्लूकोज का कन्वर्जन किसके अंदर होता है, CO2, तो उसके साथ में क्या फॉर्म होता है, वाटर मॉलिक्यूल। The cellular respiration can be summarized as follows: C6H12O6, C6H12O6, this is the formula of the glucose, plus 6O2 means 6 molecule of the oxygen. Now when these two reacts, it forms 6 molecule of the CO2, 6 molecule carbon dioxide plus 6 water molecule, 6 molecule किसके है, water के, and energy 38 ATP energy is released।
So this 38 ATP energy is released when there is a complete burning of the glucose. जब ग्लूकोज पूरी तरह से कन्वर्ट होता है किसके क्या है, completely ऑक्सीडाइज होता है। और फॉर दिस यस वी नीड द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए ऑक्सीजन का अमाउंट क्या चाहिए, एक्सेस, ज़्यादा चाहिए। देन ओनली दिस विल यस गेट कन्वर्टेड completely into the 838 ATP एनर्जी, तभी 838 ATP एनर्जी मिलेगा। यूज योर ब्रेन पावर। हाउ डू द ऑर्गेनिज्म How do the organism like amoeba, earthworm, cockroach, plants, various aquatic animals, bird respire? Prepare a chart. Okay. So now you have seen that is the living things respire through the lungs. Some living things respire through their skin. Some respire through the gills. कुछ क्या है, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, कुछ किसके थ्रू करते हैं, ये जो पोर्स होते हैं उनके बॉडी में, उस पोर के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और कुछ जो उनका जो पूरा बॉडी का मेम्ब्रेन है, स्किन, स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। थिंक अबाउट इट। along with the heat, sound and light, along with the heat, sound and light are also produced during the burning of fuel. Similarly, whether the sound and heat are produced during oxidation of nutrient in cell. Now yes, question is that yes, when you burn any fuel, for example coal, diesel, petrol, so that time there is a generation of the sound as well as light and heat energy. तो थ्री टाइप के एनर्जी रिलीज होते हैं। तो क्या न्यूट्रिएंट के बर्निंग से भी तीनों टाइप के एनर्जी रिलीज होते हैं। तो यस, which energy will release, heat energy will release, and sound energy will release during the oxidation of nutrient. Can you tell which organs are present in the respiratory system? Respiratory system में कौन कौन से organ present है? Now yes, respiratory system involve what? Nose, trachea, that is windpipe, and the lungs and diaphragm. One should not talk while eating. Why it is so? किसी को भी बात करने के टाइम बात नहीं कर, खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? बिकॉज yes, the food pipe and windpipe have the common passage, is common point. At that point when we talk that time, yes, one passage close, and when we eat then one passage close. What happens when we eat that time, the windpipe close, तो उस टाइम क्या होता है, विंड पाइप क्लोजेस, बंद हो जाता है। एंड दैट वाई यस इट प्रिवेंट द इज एंट्रिंग ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप। तो ये क्या करता है, ये विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल्स जाने के लिए रोकता है। एंड इफ वी टॉक, तो बाय मिस्टेक द फूड दैट वी हैव ईटन मे इज एंटर इन द विंड पाइप, उस इसके के अंदर क्या हो सकता है, एंटर हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को क्या हो सकता है, इस खांसी आ सकती, छींक हो सकता है, एंड बर्निंग सेंसेशन कैन बी यस ऑब्जर्व्ड, और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। तो दैट्स वाई वाई ईटिंग वी शुड नॉट टॉक। ओके, टॉकिंग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, यस देर आर चांसेस ऑफ गोइंग द फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप, तो विंड पाइप में जाएगा। और समटाइम्स इट हैपेंस, और कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको समझ में आता है कि हम लोगों को किस तरह से आँख, नाक सब लाल हो जाती है। Okay, now yes, turn the page. रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब क्या देखना है हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, ह्यूमन बींग्स। ओके, तो यस कीप इन माइंड द पार्ट्स विच आर शोन इन फिगर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स।
Okay, now see respiratory system. First observe the figure given alongside. Now yes, see the lungs. There are the pairs of the lungs. कितने lungs है? दो. Now yes, see this is the yes nasal cavity. Nasal cavity मतलब नाक के अंदर का जो cavity है, gap है, वो क्या है? Yes, nasal cavity. And here this is the trachea. Trachea means windpipe. क्या है ये? Windpipe. And here yes, and yes below the windpipe there is the bronchia. ये जो क्या है? ये विंड पाइप के नीचे जो क्या है? ये ब्रोंकिया है दो. एंड ब्रोंकिया फर्दर yes further yes branch yes form the branches that called as the bronchioles. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. एंड ये फेरिंग्स एंड लैरिंग्स. ओके, जो क्या है? ये ट्रैकिया. ट्रैकिया के ऊपर क्या है? लैरिंग्स एंड फेरिंग्स. फेरिंग्स आर रिलेटेड टू द yes pharynx are related to the food pipe. ये किससे रिलेटेड है? फूड पाइप से रिलेटेड है. नाउ सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग. And yes, one more part very important, because of that the air enter and yes release from the nose, that is diaphragm. ये क्या है? yes diaphragm. Now see yes below the two lungs, lungs के नीचे क्या है? yes muscular structure. ये muscular structure है. This is called as the diaphragm. Now first part, nose. Respiration start from the nose, or yes respiratory system and respiration begins with the nose. Respiratory system or respiration begins मतलब start होना. तो it start from the nose. nose से start होता है. Air is filtered with the help of the hairs and mucus present in the nose. Now yes air में क्या होता है? dust particles होते हैं. जब क्या है? ये वो ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा तो उसके अंदर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होंगे, फ्लोटिंग पार्टिकल्स होगा एयर में. तो दो हेयर्स जो बाल होते हैं नाक के अंदर, तो वो क्या होते हैं? ये वो जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उस कमिंग एयर को फिल्टर करते हैं एंड डस्ट पार्टिकल को नाक के अंदर ही स्टॉप करते हैं, ताकि क्या है? ये वो डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स तक ना पहुँचे एयर के थ्रू. तो एयर इज फिल्टर विद द हेल्प ऑफ एयर. एयर के हेल्प से उसको फिल्टर करता हो. एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज. और जो म्यूकस होता है उसको क्या करता है? ये गीला करके वेट करके उसको हैवी बनाकर उसमें रोक देता है. नाउ यस फेरिंग्स. क्या है ये? फेरिंग. फेरिंग किसका पार्ट है? फूड. फूड मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स. फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स. जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स, फेरिंग से ही क्या है? ये विंड पाइप और क्या है? फूड पाइप ओरिजिनेट होते हैं, वहीं से वो दोनों निकलते हैं. ठीक है, कहाँ से? कहाँ से दोनों निकलते हैं? फूड पाइप और विंड पाइप फेरिंग से. तो देखो यहाँ पे फेरिंग्स है. फेरिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वो ऊपर की तरफ गया है. ठीक है, और ये से यहाँ पे नीचे. तो ये जो नीचे से क्या होगा? बाद में वो कहाँ चले जाता है? स्टमक में चले जाता है. तो विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप. जो विंड पाइप है, यस विंड पाइप वो किसके सामने प्रेजेंट है? फूड पाइप के. विंड पाइप इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द विंड फूड पाइप. तो मीन्स फूड पाइप क्या है? पीछे है. और विंड पाइप किधर है? आगे है. देयर इज ए लीड एट द बिगिनिंग ऑफ द विंड पाइप. और जहाँ पे विंड पाइप की शुरुआत होती है वहाँ पे एक लीड है, एक ढक्कन है. This lid closes the windpipe during passing of the food into the food pipe. अब जब क्या है? ये हम खाना खाते हैं उस टाइम क्या है? ये लीड जो है ये उस विंड पाइप को क्या करती है? क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से क्या है? जो फूड हम खाते हैं वो क्या है? ये विंड पाइप के थ्रू स्टमक में चले जाता है. This lid closes the windpipe during the passing of the food into the food pipe, and thereby yes normally prevent entry of the food particle into the windpipe. Otherwise windpipe remain open, hence air passes through the pharynx into the windpipe. Hence air passes through the pharynx into the windpipe.
तो फेरिंग से ही क्या है, इस एयर विंड पाइप के अंदर पास होता है। तो अभी ध्यान में रखो ये क्या है, यहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट होगा। यस नाउ हियर यस देयर इज द कॉमन पैसेज, और कॉमन पैसेज का नाम है, कॉमन पैसेज का नाम क्या है, फेरिंग्स। एंड फेरिंग से ही क्या होता है, टू थिंग्स ओरिजिनेट, दो चीजें निकलती है। एक क्या है फूड पाइप, और एक दूसरा क्या है, विंड पाइप है। ओके। तो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ नो लीड, अगर लीड मीन्स ढक्कन, अगर ढक्कन नहीं रहेगा तो व्हाट विल हैपन इज दैट food will enter into the windpipe and this will cause the problem. Now yes, second point is the windpipe. Windpipe is swollen at the beginning due to the sound box. Windpipe जो है जिसके थ्रू क्या होती है, एयर पास होती है, और वो एयर कहाँ पहुँचती है, लंग्स पे। तो विंड पाइप इज स्वेलन एट द बिगनिंग, बिगनिंग में क्या होता है, वो स्वेलन होता है बिकॉज इट कंटेन द साउंड बॉक्स, उसके अंदर साउंड बॉक्स होता है। विंड पाइप बाइफरकेट्स इनटू द थोरेक्स, विंड पाइप आगे चलकर थोरेक्स में बाइफरकेट होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। बाइफरकेट होना मीन्स डिवाइडिंग इनटू द टू पार्ट्स। वन ब्रांच एंटर द राइट लंग एंड अदर इनटू द लेफ्ट लंग, तो वहाँ से बाइफरकेट होकर वो कहाँ चले जाती है, यस एक राइट लंग्स में और एक लेफ्ट लंग्स में। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द लंग। along a lung is present on either side of the heart in thoracic cavity। अब देखो ये क्या है, चेस्ट रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, थोरेसिक कैविटी। एंड इस डायफ्रेम के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। और जो क्या है, ये सपना थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में क्या है, लंग्स और क्या रहते हैं, हार्ट प्रेजेंट रहता है। A lung is present on either side of the heart इन थोरेसिक कैविटी। अब यहाँ पे बीच में हार्ट रहेगा और लंग्स उसके साइड साइड में प्रेजेंट रहते हैं। our branch and yes sorry one branch enter into the lung is present on either side of the heart in thoracic cavity. Maximum area of thoracic cavity is occupied by lungs and there they cover the maximum part of the heart. They cover the maximum part of the heart. Each lung has the double layered covering. हर हार्ट के अराउंड क्या है, ये टू लेयर्स की कवरिंग है। इट इज कॉल्ड एज द प्लूरा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। लंग्स आर इलास्टिक लाइक स्पंज। अब ये जो लंग्स है वो इलास्टिक है, मीन्स इट कैन चेंज इट्स शेप, इट इज नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सके, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये इलास्टिक है, इसके अंदर क्या है, चेंजेस पॉसिबल है। lungs are made up of many small compartments called as alveoli। अब यहाँ पे lungs जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स लाइक जो क्या है, ये छोटे छोटे इस छोटे छोटे जो है ये स्मॉल रूम की तरह बने हुए, दे आर कॉल्ड alveoli। A rich network of capillary is present around each alveolus। अब हर एक एल्वुलस के अराउंड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। द वॉल ऑफ एल्वुली एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन। अब जो एल्वुलीज एंड कैपिलरीज दोनों के जो वॉल होते हैं, दे आर वेरी वेरी थिन। Gaseous exchange can easily takes place across these walls। अब जो क्या है, कैपिलरीज एंड एल्वेलीज दोनों की क्या है, ये जो वॉल, ये जो वॉल्स है मीन्स मेम्ब्रेन है, दे आर वेरी वेरी थिन एंड बिकॉज ऑफ दैट द गैस कैन एंटर इनटू एंड यस कम्स आउट।
तो दोनों के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल है। मीन्स जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो सकता है और ब्लड के थ्रू लाया हुआ CO2 लंग्स के उस एल्वेली में एस क्या है आ सकता है। एज लार्ज नंबर ऑफ एल्वेली इज प्रेजेंट इन द लंग्स, larger surface area available for gaseous exchange, because lung is made up of a smallest part called alveoli, and there are the huge amount of alveoli, and because of that yes large surface areas available for the gaseous exchange। तो इसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल होता है। नाउ सी द डायग्राम, yes see this is the diagram of alveoli। now see this is the yes in the form of the bunch के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो yes there is a small sections, छोटे छोटे sections दिखाई देते, that sections yes is covered by the capillaries, and because of that there is a exchange of the gases between the alveoli and the capillaries। now see this structure here, alveoli, in and out passage is shown here, and yes outside of it yes capillaries are shown। so now you see these are the cells, these are the RBC cells transport into the capillaries। now yes these are transport into the capillaries। now yes here what yes oxygen that enter into the alveoli now yes enter into the capillaries, and these capillaries yes carries the blood and yes bring towards the हार्ट, एंड हार्ट देन पम्प्स आउट टू सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। अब उसके बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए पंप आउट करता है। ओके स्टूडेंट, यस नाउ यू हैव सीन the parts of the respiratory system, let's revise it।